Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. How are you? Dear student, in the last lecture we have discussed about chemical formula. Chemical formula is, student, the representation of molecule of a compound in a form of symbol is called chemical formula. Chemical formula tell us about three things. First one, name of element present in a molecule. Second, number of atom of each element. Third, composition of a compound. We also discuss some of the chemical formula, chemical compound and its chemical formula like calcium carbonate, sulfuric acid, sodium chloride and ammonia and hydrochloric acid. Second important thing is how to write chemical formula. In order to write chemical formula, you should write cation on left and anion on right hand side. Second, cross the charges to the lower right. Third step, if the charges are same, do not cross multiply. So this is student all about what chemical formula. For practice work, we explain two examples like the formation of calcium oxide. Calcium has +2 charge while oxygen have -2. Both have same charges, so do not need to cross multiply, and simply we can write it CaO. In second example, we see that one have +2 charge and second bromine has -1 charge. So in that case, we cross multiply their charges to form calcium bromide. We also discuss about little bit about isotope. Isotope is what? Isotope are the element having same atomic number but different mass number are called isotopes. Now student, in this lecture we discuss about isotopes in detail. What is isotope? As we discussed that atom of the same element having same atomic number but different mass number are called isotope. ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर उनके डिफरेंट हो उनको हम आइसोटोप का नाम देते हैं। या इसकी अगर बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन में करूं तो ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन में डिफरेंस हो, उनको हम कहते हैं बच्चों आइसोटोप्स। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं बच्चों। आइसोटोप की एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। इसी तरह हर एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप हो सकते हैं, लेकिन जस्ट हम इस लेवल पे हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के बच्चों हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। पहले का नाम है हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन एंड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को बच्चों हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटियम। हेवी हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं ड्यूटीरियम एंड थर्ड रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं ट्रीट्रियम। ये लास्ट लेक्चर में भी शायद मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए देखते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीट्रियम में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट वन, प्रोटियम। प्रोटियम बच्चों आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपके पास निकलता है। अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप को नेचुरली निकालते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा निकलने वाला जो आइसोटोप है वो है आपके पास प्रोटियम। इज दैट क्लियर? और प्रोटियम को बच्चों सिंबल H से शो करते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोटियम इज सिंपली डिनोटेड बाय H। इसके अंदर बच्चों आपके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। इसके अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, 1 proton and 1 electron, and it do not have any neutron. So this is about protium. What is protium? Protium is the isotope of hydrogen. It is also called as what? Ordinary hydrogen. It is also called as ordinary naturally occurring hydrogen containing the largest percentage of hydrogen isotopes. It has 1 electron, 1 proton and no neutrons. Second isotope, that is called deuterium. Deuterium is actually
called heavy hydrogen isotopes. अगर आपसे ब्लैंक्स में पूछा जाए कि हेवी हाइड्रोजन आइसोटोप कौन सा है तो आपने कहना है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम की जो परसेंटेज है हमारे पास बच्चों 0.0015% आपके पास नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली आपके पास 0.0015% में आपके पास निकलता है। इसके अंदर बच्चों आपके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसको डी सिंबल से शो करते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट ड्यूटेरियम। नाउ रिवाइज, it is also called as heavy hydrogen. The percentage of deuterium in naturally occurring hydrogen is about 0.0015%. It has one electron, one proton and one neutron. It is denoted by symbol D. Third isotope. Third isotope of hydrogen is called radioactive hydrogen, or it is called tritium. What? Tritium. Tritium. It is radioactive isotope of hydrogen. ये आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। रेडियो एक्टिव आइसोटोप बच्चों कहते हैं जो आपके पास रेडिएशन को इमिट करता है, जो रेडिएशन को खारिज करता है। इनकी परसेंटेज आपके पास कितनी है? द नंबर ऑफ ट्रिटियम आइसोटोप इज 1 in 10 million। 10 मिलियन हाइड्रोजन आइसोटोप को जब आप निकालेंगे उसमें से सिर्फ एक जो आइसोटोप है वो आपके पास ट्रिटियम निकलेगा। इसका मतलब इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम है। अगर हम इनके पार्टिकल्स की बात करें, इसके अंदर एक प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? इट हैज़ 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इट इज़ डिनोटेड बाय T। सॉरी, मैंने सिंबल में गलती कर दी है। इट इज़ डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल T। इज इट क्लियर? So this is all about the isotope of hydrogen. Now come to the uses of isotopes. Student, uranium isotope is used as a fuel in nuclear reactor. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें बच्चों आपके पास यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम आपके पास एक एलिमेंट है, इसके आइसोटोप को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इसके अलावा आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है आपके पास, कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है जिसके आपके पास आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ग्वाइटर की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें आपके गला क्या हो जाता है? सूज जाता है। उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। और ग्वाइटर की बीमारी को ट्रीट करने के लिए आइसोटोप ऑफ आयोडीन को यूज़ करते हैं। इसी तरह आइसोटोप ऑफ कार्बन इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ मटेरियल लाइक ट्री। कुछ मटेरियल की एज को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली कार्बन के आइसोटोप को यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रीज़ वगैरह कितने साल पुराना है या कोई जानवर कितने साल पुराना है, उसकी एज को मेजर करने के लिए एक्चुअली क्या कहते हैं? आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज़ करते हैं। और इसी के साथ एक आखिरी यूज़ ऑफ आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप इज़ यूज टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ पाइपलाइन। रेडियो आइसोटोप्स वगैरह को, पाइप वगैरह की लीकेज वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ आइसोटोप। आई होप इट इज़ वेरी इजी। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर। In this lecture, student, we discuss about first main point is isotope. What is isotope? Isotope are the element having same atomic number but different atom of same elements having same atomic number but different mass number are called isotope, or simply if we say that atom having same number of proton and
electron but different number of neutron are called isotopes. Second main point is types of hydrogen isotope. There are basically three types of hydrogen isotope. First one is called protium, second one is called deuterium, third one is called tritium. Protium has one electron, one proton and no neutron, while deuterium has one electron, one proton and one neutron, while tritium has one electron, one proton and two neutron. And protium exists in largest percentage as a naturally occurring isotope of hydrogen, while deuterium occur naturally is about 0.0015 percentage, while the percentage of tritium is the number of tritium isotope is 1 in 10 million. तो स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने याद रखना है. जैसा कि ब्लैंक्स में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड डैश प्रोटियम. कौन सा हाइड्रोजन आइसोटोप आपके पास रेडियो एक्टिव होता है तो आपको पता होना चाहिए. रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन इज ट्रिटियम. विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज लार्जेस्ट परसेंटेज ऑन अर्थ तो आप कह सकते हैं प्रोटियम. विच आइसोटोप हैज one electron, two neutron and one proton. So you should answer about tritium. तो स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन आइसोटोप्स के ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. तो आप इस तरह के क्वेश्चन, इनकी परसेंटेज, इनके नेम, इनके सैंपल, इनकी अकरेंस और इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कितने होते हैं, इन सबको आपने याद करना है. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही. होमवर्क पे आते हैं. आपका होमवर्क है आइसोटोप को डिफाइन करने और हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप हैं इनको आपने डिस्कस करने हैं. इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. तो स्टूडेंट एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट आपको जो होमवर्क सेकंड टर्म का स्कूल से मिला था आपने उसको नीट कॉपी के ऊपर करना था और नीट कॉपी को आपने सबमिट करवानी थी. तो जिन स्टूडेंट ने नहीं सबमिट करवाई तो आज या कल सबमिट करवा सकते हैं. और इसके अलावा जो भी ऑनलाइन जो होमवर्क मिलता है लाइक दिस क्वेश्चन, तो इसको आपने किसी भी पेपर्स वगैरह के ऊपर करके सबमिट करवा सकते हैं. इज़ दैट क्लियर? तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मेन पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे. इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.